Hello everyone, I'm Som Prakash and welcome back to JTC India YouTube channel. Guys, career options. Many of you nowadays looking for career options. After what? So maybe first one is you have completed your BTech, MTech, BCA, MCA or some BCom and all some XYZ degree you have completed. After completing all these things, eventually you started preparing. Second one, you started preparing for some entrance exams, which is one is the GATE, maybe the CAT, or like that could be the number of other exams. You started preparing for that by keeping in aim something big. कुछ ही केस में वो aim जो है वो बड़ा होता है, or else most of the cases में वो ऐसा होता है कि ठीक है अभी BTech, MTech, BCA, MCA के बाद I didn't get anything, so let's get into some other exams. Especially GATE and all, we have some specific like after BTech and all you can write it. And the third option is, and that is the very huge numbers are there. So you will start preparing for after completing BTech, MTech or something, some your degree, masters or graduation, whatever you're doing. After that, you might be preparing for the government exams. In government exams could be anything like civil services, CGL, banking exams, n number of exams are there. And I have seen one thing that if anyone is preparing for any government exams, at least 3-4 years time they are allocating for that exams, and out of 100%, 99 or you can say 98% people are not getting success, means कि वो उस चीज को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं. नाउ अब होता क्या है कि हर लेवल पे इधर आफ्टर बीटेक एमटेक समथिंग दे डिडंट गेट गुड, देन उनको करियर ऑप्शंस चाहिए. मे बी वो गेट या कैट या समथिंग उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाए एंड दे टुक एटलीस्ट 1 or 2 years ऑफ टाइम एंड देन आफ्टर अगेन दे आर लुकिंग फॉर सम करियर ऑप्शंस. एंड नेक्स्ट नाउ गवर्नमेंट एग्जाम्स, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज एंड XYZ n number of exams are there. I don't want to name it out here every exam because it is a huge, more than 30-40 exams are available at this time. So even if they are not able to crack it after 3-4 years, now again they need a career option, that what shall I do now? So there is one common thing, only one common thing, that they need certain job. And when you talk about the job, आप में से कुछ लोग जो कंफ्यूज्ड होते हैं इनिशियली, उनको बस जॉब चाहिए, ओनली जॉब, ओनली जॉब दे नीड. जिनको ओनली जॉब चाहिए तो वो उस केस में उन्हें व्हाट मैटर्स इज द मनी. और होता क्या है कि उनका स्ट्रगल इस तरह का हो जाता है, इधर एट एनी स्टेज, जो भी मैंने 3 स्टेजेस बोले उसमें से किसी स्टेज में करते करते उसका स्ट्रगल इतना हो जाता है कि वो कोई भी जॉब करने के लिए नाउ रेडी है, डिस्पाइट कि उसे कुछ पैसे मिलने चाहिए. कैसा पैसा मिलना चाहिए? आप ऐसे देख लो कि मैं तो देख रहा हूं कि लोगों को 15,000 से लेके 15 to 30,000 में, जो भी 30,000 मिल गया तो चलो तो कुछ कहना ही नहीं है, बट 15,000 भी मिल गया तो दे आर रेडी टू डू. अब ये जॉब की कैटेगरीज क्या है? मींस अगर जो टेक्निकल डिग्रीज के साथ लोग हैं या ऐसे कॉल सेंटर्स. सेकंड ऑप्शन इज दे आर गेटिंग सम ऑप्शन फॉर कंटेंट राइटिंग एंड ऑल, स्पेशली गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स, गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स, क्योंकि इनको बहुत आसानी से कंटेंट राइटिंग की जॉब मिल जाती है किसी इंस्टीट्यूट से या कहीं पे भी, किसी जिस सब्जेक्ट की वो प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए. देयर आर सम मनी दे आर गेटिंग आउट ऑफ दैट. आफ्टर दैट नाउ मार्केटिंग जॉब्स. इसकी तो इतनी गंदी स्थिति है इस जॉब की, आई विल टेल यू. बट यहां पे क्या होता है कि इनको जॉब मिल जाती है, 3-4 साल इनका, 3 to 4 years इनका ऑलरेडी खराब हो चुका रहता है. एंड देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट इज देयर. आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम, बट यस यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर डूइंग. इफ यू आर डूइंग एनीथिंग नॉन टेक्निकल, non-relevant or irrelevant to your BTech or whatever you have done, based on that if you're not doing something good job, then everything else is irrelevant, right? So 3 to 4 years already they have wasted in doing some XYZ, maybe the GATE preparation, maybe after BTech they have done the MTech in hope that okay they'll get certain good job, but which is not going to happen. And after that again they are going to waste 3 years to 4 years in these jobs. Why? Because they have certain responsibilities, and that responsibility they are able to fulfill with this money, which is whatever 15 to 30K whatever they are getting in that, but they are not able to get any growth. ग्रोथ नहीं हो रहा है, इनमें से किसी का भी ग्रोथ नहीं हो रहा है. समझ रहे आप? कोई ग्रोथ नहीं है. तो ये एक ऑप्शन आपके पास है. जो करियर ऑप्शन की बात करें कि दिस इज वन ऑप्शन विच इज अवेलेबल, आप एक ये ऑप्शन को भी कर सकते हैं. लेकिन ये आपको सोचना है, यू नीड टू थिंक वेदर यू आर विलिंग टू गो फॉर दिस और नॉट. बिकॉज एक टाइम के बाद 3-4 years, एक सर्टेन टाइम के बाद आपका यहां पे जो है करियर बहुत मुश्किल हो जाएगा. और वो मुश्किल इस तरह से भी होगा कि व्हेन यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग
yourself with your friends, those who are working in some good organizations related to IT sector, or there maybe they are working in their core field, then आप बहुत पीछे दिखोगे. तो ऑप्शन नंबर 1 ये था आपके पास. ऑप्शन नंबर 2 आपके पास ये है कि ठीक है जी, अभी जो भी हमने किया, बीटेक एमटेक गेट का प्रिपरेशन किया, हमने गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन किए, ये तो कर लिया, टाइम हमारा खराब हो गया बिकॉज उसके बेसिस पे आपने कुछ मिला नहीं, और ना मिलने के देयर आर नंबर ऑफ रीजंस. आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स इन नंबर ऑफ अदर वीडियोस. यू कैन check out our playlist. But again here when I am talking about this, so okay, you have wasted 3 to 4 years. Now एक बात आपके दिमाग में आना चाहिए, कैन आई गेट बैक टू IT जॉब्स? मेरा इनडायरेक्टली कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर जॉब में हम जा सकते हैं. इसमें से आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए कि they'll start talking with their friends, those who are working in some of the good organizations from past 4-5 years and 6 years. So what they'll ask with their friends that boss, can I do this? Can I get into the software? देखिए, मैंने देखा है ज्यादातर, I am not saying about everyone, but in most of the cases आपका जो फ्रेंड होता है, your friend, what they are saying is no, अभी तो तुम्हारा गैप बहुत ज्यादा हो चुका है, no IT company is going to accept you. अब वहां पे क्या होता है कि आप थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको चीजें समझ में नहीं आती हो. लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आप ऐसे देखो कि हम लोग कितने सालों से हैं, लगभग ऑलमोस्ट 15 to 16 ईयर्स से हम यहां पे हैं, विच इज स्पेशली इन नोएडा, एंड thousands and thousands of students, more than 50,000 students हम लोग के यहां से पढ़े हैं JTC से, एंड सक्सेसफुली अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगहों पे लोग काम कर रहे हैं, एंड उनके लाइफ को हमने ट्रांसफॉर्म किया है, उनके डेफिनेटली उनके एफर्ट से, बट हमने ट्रांसफॉर्म किया है अपने गाइडेंस से, अपने एफर्ट से, उनके एफर्ट से, एक कंबाइंड एफर्ट लगा के हमने वो किया है. तो हमारा एम क्या रहता है कि जब भी आप कोई करियर ऑप्शन चूज करें, शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए वो करियर ऑप्शन प्लीज आप सेलेक्ट अपना मत करिए. इवन इफ इट इज गोइंग टू टेक अ ईयर, देन प्रिपेयर फॉर दैट. व्हाई? बिकॉज डे बाय डे योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल इंक्रीज, एंड देन एट दैट टाइम इफ यू विल ट्राई टू डू समथिंग एल्स, इफ यू विल ट्राई टू स्टार्ट समथिंग लर्निंग, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू. इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, राइट? सो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम आपको ट्रेनिंग देते हैं. अब ये ट्रेनिंग का सबसे मेजर फोकस क्या होता है? इस ट्रेनिंग का मेजर फोकस है आपके लिए जॉब. मुझे नहीं पता कि आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड या कोई भी क्या बोल रहा है कि कैसे जॉब होता है, कैसे जॉब नहीं होता है, किस तरह से होता है, क्या होता है, एंड ऑल. लेकिन ये जो भी ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, व्हाटएवर ट्रेनिंग्स वी विल डू, इस ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होगा जॉब. अब कौन सी ट्रेनिंग आपने करनी है? सो देयर आर n नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स आर अवेलेबल, n नंबर ऑफ. जैसे कुछ बहुत हाई ट्रेनिंग है. फॉर एग्जाम्पल, एक है आपके पास, आप बात करते हो डेटा एनालिटिक्स, आप दूसरी बात करते हो डेटा साइंस की बात करते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट बात करते हैं एक मन और समथिंग मीन की बात करते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ भी ट्रेनिंग आप करने की बात करते हैं जहां पे कम एफर्ट में आपको टाइम कम देना पड़े, जहां पे आप बहुत अच्छे से अच्छा पैकेज ले सकते हैं. लेकिन अब आपको इसमें से किसी ने कोई सजेस्ट कर दिया, आपने क्या किया कि आपने भी कुछ अपने से YouTube वगैरह पे देख के यू हैव डिसाइडेड दैट आई विल गो विद दिस. लेकिन आप भूल जाते हो कि आपका बैकग्राउंड, व्हाट इज योर बैकग्राउंड? रियलिटी ऑफ योर बैकग्राउंड इज दैट इन पास्ट 3-4 years you have not done anything related to the technical after completing your BTech and all. And even if you have completed the BTech के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, कितना ज्यादा टेक्निकल होता है, कैसे करते हैं, आपने ज्यादा बेटर पता है. ठीक है, तो उस पे मैं कुछ अभी कमेंट नहीं कर रहा कि BTech में आप क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं. अब आज की डेट में आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, अगर आप इन चीजों को कहीं से सीख के जाते हैं और कहीं पे फॉर एग्जांपल आपको जॉब मिलती है, तो सबसे पहला काम कि इन डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मान एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं, इसके बेसिस पे आपको 15 to 20,000 का जॉब मिलने में हालत खराब हो जाता है. एंड ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने लोगों को देखा है इस तरह से.
होता क्या है कि कंपनीज जो भी आपको हायर करने जा रही हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि इन्होंने कुछ सीखा है, समझा है और थोड़ा बहुत ये जानते हैं. On the basis of that, they are looking for a job, so they just want to gain some experience, and okay, that is why they are looking for the job. So वो इस तरह से ऑफर करना शुरू करते हैं. लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहां पे आपको कि हम जो भी ट्रेनिंग करते हैं, जैसे मैं बात करूं आपके जावा फुल स्टैक की जो ट्रेनिंग की मैं बात करूं, फुल स्टैक की ट्रेनिंग में फ्रॉम एंड टू एंड, नॉट by keeping in mind that okay, if you are just going to complete the course, but rather than that we will think that okay, after this you are going to get the job. और हम लोग इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये रखते हैं कि थोड़ा टाइम लगे उसको भी हम लोग बहुत मिनिमाइज कर रहे हैं. जैसे कि लाइव क्लासेस हो गए और दूसरा हो गया एलएमएस में हो गया. एलएमएस में क्या होता है, सेल्फ पेस्ड रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं. सेपरेटली वी हैव द डाउट सेशंस फॉर दिस एंड ऑल. इसमें टाइम कम लगता है. कोर्स ड्यूरेशन जो है वेरी लेस होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 months में लोग कंप्लीट कर लेते हैं. वेरएज अगर लाइव क्लासेस की हम बात करें सो इसमें एटलीस्ट 8 to 9 months तो लगना ही लगना है अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो. ठीक है, तो हम लोग इस चीज में क्या करने का कोशिश करते हैं, हम इसमें करने का ये कोशिश करते हैं कि 3 से 4 साल 3 to 4 years का जो डेवलपर है हु इज वर्किंग इन मोस्ट ऑफ द एनी ऑफ द कंपनी, उसको जो स्किल सेट है, व्हाटएवर स्किल सेट इज हैविंग, वो सभी स्किल सेट हम आपको इस ड्यूरेशन के बीच में ट्रेन करने का कोशिश करते हैं, उसको समझाने का कोशिश करते हैं कैसे यूज होता है, क्या होता है, विथ वेल डॉक्यूमेंटेशन, अच्छे डॉक्यूमेंट्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, उसको बहुत बढ़िया से समझा के, आपको प्रैक्टिस करा के, और इतना प्रैक्टिस करा के कि आप किसी भी कंपनी में जाके किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कंपनी आपको रिजेक्ट नहीं करेगी. इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस लड़के ना, अच्छा हमारा क्या एम होता है इसमें कि आप अगर इस करियर ऑप्शन में आए हो, तो कम से कम आपको 8 to 10 लाख रुपीस LPA आपको पर एनम का मिल जाए, मिनिमम स्टार्ट. ठीक है, यूजुअली तो हम बात करें तो जेटीसी से हाईएस्ट 24, 25, 26 लाख तक के पैकेज गए हैं. ठीक है, और एवरेज 12 से 15 लाख रुपए का 10 से 15 के बीच में जाता है ये चीज. लेकिन ठीक है, इनिशियली जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, 10,000 15,000 की जॉब के लिए आपको नहीं मिल रही है, तो शायद मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहा हूं आपको बिलीव नहीं होगा. लेकिन आप हम लोगों के टेस्टिमोनियल्स को देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ये आपको इसमें दिख जाएगा. आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे देखिए इन टेस्टिमोनियल्स को. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी और के ऊपर बिलीव करने के लिए एक उस आदमी पे बिलीव करिए कि जिसका एक लंबा पास्ट है आपको गाइड करने का, आपके साथ चलने का और एंड रिजल्ट तक पहुंचाने का. और आप अपने आप के ऊपर बिलीव ऑन योर सेल्फ कि हां आप कर सकते हो, और मैं आपको बोलता हूं कि आप आराम से कर सकते हो. लेकिन आपको ये टाइम देके अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छी जॉब होगी. आगे आने वाले समय का आपका बहुत ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, रिलेटेड टू द जॉब, रिलेटेड टू द मनी एंड रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. बट अननोइंगली, जल्दीबाजी में, कुछ ऐसा आपको समझ ना आए या गाइडेंस ना रहे, आप कुछ भी करने लगे. बहुत सारे करियर ऑप्शंस उस समय आपके सामने आते हैं जब आप किसी भी चीज में आप फेल हो जाते हैं, या मे बी बीटेक के बाद आपको जॉब नहीं मिल रहा है. आज मैं देखता हूं फ्रेशर लड़का किसी भी तरह के जॉब के लिए ट्राई करता है. ठीक है, उसे बिल्कुल ये चीज नहीं सोचना है, या बिल्कुल इस बात को वो सोचता नहीं है कि व्हाट आफ्टर 3 years, व्हाट आफ्टर 5 years, नहीं सोचता है वो. इसी तरह से जो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन लोग करते हैं, और वो जब अल्टीमेटली उन्हें ये रियलाइज तो होता है कि नो, आई हैव टू गेट बैक इनटू द सॉफ्टवेयर. लेकिन द प्रॉब्लम इज, वो सोचता है कि 3 महीने 4 महीने के अंदर कुछ हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, मैं जल्दी से कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स कर लूं, 1 आध हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते पढ़ लूं, कोई जुगाड़ से मैं हो लूं. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी टाइम अपना खराब कर रखा है, और आगे भी अगर ऐसा सोचते हैं तो आपका टाइम खराब होगा. ठीक है, और मार्केटिंग
एंड ऑल में अगर आपका टेक्निकल डिग्री है, और अनलेस यू आर नॉट मच इंटरेस्टेड एंड मच इंटरेस्टेड इन द मार्केटिंग एंड रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स, प्लीज 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 डोंट गो फॉर ऑल दैट. आप रीच आउट करिए जेटीसी में, बात करिए, दिए हुए नंबर्स पे बात करिए, अपनी बात को समझिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या आपके लिए हमारा प्लान है, कितना टाइम हम लेने वाले हैं, ठीक है, और आपका करियर का ट्रेजेक्टरी क्या होगा आने वाले टाइम में, इस बात को समझिए एंड देन यू टेक योर डिसीजन. ठीक है, तो यही मेरा था career options for you guys, that is for the BTech students, for the government exam, you can say aspirant students, or whatever, means even if you have taken certain gap after your qualification, after your degree, after your masters, whatever you have done, उसके बाद अगर आपने कुछ गैप लिया है तो आपके लिए क्या ऑप्शंस होने चाहिए, ये चीज मैं आज इस वीडियो के अंदर बताया. आपको सही लगे मेरी बात को तो आप इसको शेयर जरूर करिए और कमेंट्स में कमेंट करके बताइए. कांटेक्ट नंबर पे दिए हुए आप रीच आउट करिए, बात करिए और अपनी बातों को समझिए और समझाइए. थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर.